السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 لال مرچ اور سورہ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں، ایک ایسا عمل آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں جو یقیناً آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا، تمام تکلیفوں کو ختم کر دے گا، تمام دکھوں کو ختم کر دے گا، تمام درد آپ کی زندگی سے مٹ جائیں گے، آپ کی زندگی کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لا کر کھڑا کر دے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک ایسا موڑ آ جاتا ہے جہاں انسان کو ہر راستہ بند نظر آتا ہے، نہ چین ملتا ہے نہ ہی سکون ملتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے، آنکھیں ہر وقت نم رہتی ہیں، پریشانیاں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ لگتا ہے جیسے اب کوئی امید باقی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ راحت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تکلیفیں تمہیں آج رلا رہی ہیں، کل وہی تمہیں مضبوطی بھی دیں گی، بس بھروسہ رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تجبوہا اس مومن پر جو مصیبت میں بھی اللہ سے بھلائی کی امید رکھتا ہے۔ ہم آپ کو آج ایک ایسا عمل بتانے والے ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہے جو برسوں سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں فاقہ ہے، جن کے دل ٹوٹ چکی ہیں اور جن کی راتیں آنسوں سے بھیگی ہوئی ہیں۔ آپ کا رب آپ کو نہیں بھولا ہے، آپ کی آنکھوں سے گرا ہر آنسو اللہ کے علم میں ہے، بس ایک سچا یقین چاہیے اور ایک سچا ارادہ، کیونکہ جب اللہ کسی کو اٹھاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں گرا سکتی۔ جب اللہ اس بندے پر رحمت کرتا ہے تو ہر درد، ہر تکلیف، ہر اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے، اور انشاءاللہ آج جو عمل آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کی زندگی کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں کھڑا کر دے گا۔ اگر کسی نے آپ پر جادو کیا ہے یا آپ محسوس کرتے ہیں یا کوئی نظر ہے، جادو یا شر کی طاقت آپ کے پاس موجود ہے، تو یقین رکھیے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حافظ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جنات یا بری طاقتوں کا اثر ہے، ان کا آنا جانا ہے، عجیب حرکتیں ہوتی ہیں، تو یہ عمل انشاءاللہ ان سبھی اثرات کو ختم کر دے گا، کیونکہ جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو ہر شر، ہر جادو، ہر اثرات ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے رزق میں تنگی ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، کماتے ہیں لیکن ٹکتا نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت سے یہی عمل رزق میں برکت اور راحت کا ذریعہ بنے گا۔ اگر آپ یا آپ کے بچے کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، ہر بات بنتے بنتے ٹوٹ جاتی ہے یا کوئی بھی اچھا رشتہ نہیں آتا ہے، تو اللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو وہ رشتہ عطا فرمائے گا جس میں سکون اور محبت ہو۔ یاد رکھیے جب اللہ دیتا ہے تو ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی اولاد کی خواہش مند ہے اور برسوں سے اولاد کی طلب میں روتا ہے تو یقین رکھیے اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اولاد کی نعمت سے محروم لوگ انشاءاللہ اولاد کی خوشی سے نوازے جائیں گے۔ اگر کسی کی اولاد ہے لیکن وہ نافرمان ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتی، ہر وقت لڑائی جھگڑے اور الجھن کا ماحول بنا رہتا ہے، تو یہ عمل اولاد کے دل کو نرم کر دے گا۔ نافرمانی کی جگہ اس کے دل میں محبت آ جائے گی، گھر میں محبت اور سکون لوٹ آئے گا۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے اور ہر وقت ایک کے بعد ایک بیماری آ رہی ہے، ڈاکٹروں کے چکر لگا کر تھک چکے ہو، دوائیں بھی آپ پر اثر نہیں کر رہی ہیں، تو یہ عمل اللہ کے حکم سے ہر بیماری کا علاج بنے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر درد کے لیے قرآن میں شفا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے نہ صرف بیماری ختم ہوگی بلکہ ڈاکٹروں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، روحانی راحت اور جسمانی آرام دونوں حاصل ہوں گے۔ بس یقین اور اخلاص کے ساتھ کر لیجیے گا اس عمل کو۔ اگر آپ پر کسی نے جادو کر رکھا ہے یا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نگاہ، کوئی بری طاقت ہر وقت آپ کو گھور رہی ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام نے ہر چیز کا حل بتایا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، دکان پر برکت نہیں ہے،
खर्च बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आमदनी रुकी हुई है, तो समझिए ये रूहानी रुकावटें हैं जिनका इलाज सिर्फ अल्लाह के कलाम से मुमकिन है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, हम कुरान को उतारते हैं जो मोमिन के लिए शिफा और रहमत है। अगर आपके घर में अजीबो गरीब आवाजें आती हैं, बच्चे रातों को डरते हैं या आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो जान लीजिए जिन्नात का असर आ चुका है आपके घर में, और इसका इलाज भी आप रूहानी अमल से कर सकते हैं। ये अमल जो हम आपको बताएंगे जादू का तोड़ है। ये वजीफा मिनटों में असर दिखाता है। किसी भी तरह की बंदिश, जादू, शर की ताकतें इस अमल के सामने टिक नहीं सकती। और हाँ, अगर बच्चों को नजर लग जाती है, बिल्कुल अचानक बीमार हो जाती हैं, दवाइयाँ काम नहीं करती, तो समझिए कि ये हकीकत में नजर का असर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नजर बद हक है। अगर कोई चीज तकदीर से आगे बढ़ सकती तो वो नजर होती, चाहे आसमानी नजर हो, चाहे वो जमीनी नजर हो, या फिर वो इंसानी नजर हो। यह अमल हर तरीके की नजर बद से आपकी हिफाजत करता है और पहले से लगी नजर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। बस यकीन रखिए, अल्लाह के कलाम में जो असर है वो दुनिया की किसी भी चीज में नहीं है। दोस्तों, जब इंसान अल्लाह के कलाम से जुड़ता है तो वो हर तरीके की नजर बद से महफूज हो जाता है, चाहे वो दुश्मन की चालें हो, शैतान का बसबसा हो या जादू का असर हो। अल्लाह ताला उसे अपनी हिफाजत में ले लेता है। यानी जो अमल अल्लाह की रजा के लिए किया जाए वो न सिर्फ परेशानियों का हल बनता है बल्कि हर तकलीफ से राहत भी देता है। अब सवाल ये है कि क्या करना है ऐसा जो आपकी जिंदगी को बदल दे, क्या करना है जो आपकी परेशानी, गरीबी, बीमारी, नाफरमानी सब खत्म हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आपको उस अमल का तरीका बताने जा रहे हैं जो इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियों को मिटा देगा। सबसे पहले आप इशा की नमाज को अदा कर लीजिएगा। नमाज के बाद आप एक तन्हा जगह और सुकून भरी जगह तलाश करें, ऐसी जगह जहां कोई बातचीत करने वाला ना हो, न ही कोई आपको परेशान करने वाला हो। अब आप सबसे पहले 7 लाल सूखी मिर्चें अपने पास रख लें। एक बात याद रखें, लाल और सूखी मिर्चें ही होनी चाहिए। जब आप ये 3 बातें मुकम्मल कर लें, यानी कि इशा की नमाज पढ़ लें, तन्हाई जगह देख लें और 7 लाल सूखी मिर्चें, तो समझ लीजिए अब आप तैयार हैं उस अमल के लिए जो आपकी तकदीर को बदल सकता है। सबसे पहले तो आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक बार सूरे फातिहा आपको पढ़नी है। सूरे फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ हर मुसलमान भाई बहन को याद होती है। एक बार सूरे फातिहा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सूरे कौसर, ये सूरे कौसर भी हर मुसलमान भाई बहन के बच्चे को याद होती है। 3 बार आप सूरे कौसर को भी पढ़ लीजिएगा। यानी कि एक बार सूरे फातिहा आपने पढ़ ली और 3 बार सूरे कौसर को पढ़ना है। उसके बाद 3 बार आखिर में वो दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। यहाँ पर आपका वजीफा मुकम्मल हो जाता है। अब बात करते हैं उस असली अमल की जिससे सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि नजर बद, जादू, भूत, जिन्नात का असर, हर तरीके की परेशानी का हल निकलता है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो आपने 7 लाल सूखी मिर्चें अपने पास रखी थी, अब इन मिर्चों पर आप सूरे कौसर की तिलावत करें। फिर आप इन तमाम सूरों को पढ़ने के बाद उन मिर्चों पर दम करें, यानी कि फूंक मार दें। अब इन 7 मिर्चों को लेकर उस शख्स के ऊपर से 7 बार उतार दें, यानी उसके सिर से लेकर पांव तक यानी कि नीचे तक घुमाएं। जो परेशान इंसान है, जिसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, जिसे बार बार नजर लग जाती है, जिस पर दवा असर नहीं करती, या फिर उसके ऊपर जिसके ऊपर जादू टोने टुटके हो चुके हैं या भूत प्रेत का असर महसूस हो रहा है, फिर उस इंसान के ऊपर से ये 7 मिर्चों को घुमाकर आप जला दीजिए। अगर आपके घर में चूल्हा है तो उसमें जला दीजिए। अगर चूल्हा नहीं है तो कोयले पर या स्टोव या आग की किसी भी जगह पर इन्हें जला सकते हैं। इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से इस अमल का करिश्मा देखेंगे। जो असर कई सालों से किसी इलाज से नहीं रहा, जो तकलीफें दवाओं से नहीं जा रही थी, जो परेशानी हर तरीके की कोशिश से नहीं हट रही थी, वो इस छोटे से कुरानी अमल से मिनटों में गायब हो जाएगी। क्योंकि ये अमल अल्लाह के कलाम से है और अल्लाह का कलाम वो शिफा है जो दिलों को भी सुकून देता है और जिस्म को भी आराम देता है। जैसे ही आप 7 लाल मिर्चों को जलाएंगे तो जो भी चीजें आपकी जिंदगी पर हावी हुई थी, चाहे वो आसेबी असर हो, जिन्नाती असर हो या कोई नजर लगना हो, इन सब का असर इन मिर्चों में कैद हो जाएगा। इन मिर्चों को जलाते ही आपकी जिंदगी से हर तरीके की तकलीफ
तकलीफें, परेशानियां, दुख और दर्द दूर हो जाएगा। अगर आपके घर में या दुकान में कोई जादू या बंदिश लगी हुई है तो इन मिर्चों को जलाने से वो जादू टूट जाएगा और हर रुकावट खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी परेशानियां बहुत ज्यादा गंभीर हों या आपके घर या कारोबार में जादू या बंदिश इतनी गहरी हो कि मिर्चों के ऊपर से उतारना संभव ना हो तो ऐसा करें, इन लाल मिर्चों को एक साफ कपड़े में अच्छे से बांध लें। फिर इस कपड़े को किसी बहती हुई नहर या पानी में डाल दें। इंशाअल्लाह जैसे ही ये मिर्चें पानी में बहेंगी वैसे ही आपकी सारी परेशानियां, गम और दुख भी पानी के साथ बह जाएंगे। इस अमल से आपके घर में, दुकान में, कारोबार में बरकत आएगी, आपकी कमाई में इजाफा होगा, आपकी दुकान पर ग्राहक बढ़ेंगे, आपके रोजगार और जिंदगी में नूर आएगा, आपकी तमाम तकलीफें, दुख और परेशानियां मिट जाएंगी, आपकी जिंदगी पूरी तरीके से उजाले की ओर बढ़ेगी। ये अमल यकीनन आपकी जिंदगी में बड़ी तवज्जो और खुशियों को लेकर आएगा। बस पूरा भरोसा और ईमान रखकर इसे करें। दोस्तों ये अमल बहुत ही ताकतवर और असरदार है। जो भी इंसान इस अमल को ईमान और भरोसे के साथ करता है उसने अपने जीवन में बेशुमार फायदे उठाए हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में असली राहत, बरकत चाहते हैं तो एक बार इस अमल को जरूर अपनाएं। इंशाल्लाह ये अमल आपकी तकलीफों को दूर करेगा, आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देगा। आप खुद देखेंगे कि ये अमल कितनी खुशियां और बरकत लेकर आता है और आप मुझे दुआएं दोगे और कहोगे ये अमल सच में मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा था। तो मेरे भाइयों और बहनों, यही थी हमारी आज की वीडियो जो हमने पूरी मोहब्बत और ईमानदारी के साथ आपके लिए तैयार की। दुआ करें अल्लाह से हम सबकी जिंदगी में खुशियां और बरकतें अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और अगर आपकी जान पहचान में कोई ऐसा शख्स है जो दुखों और परेशानियों और नजर लगने जैसी परेशानियों से जूझ रहा हो तो इस वीडियो को उसके पास शेयर करें। सच्ची नियत और नेक मकसद से इस वीडियो को शेयर करना बड़ा ही सवाब का काम होगा। शेयर करने से आपका कुछ भी कम नहीं होगा बल्कि जो इस वीडियो से फायदा उठाएगा उसकी तकलीफें दूर हो जाएंगी, उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी और आपकी जिंदगी में भी खुशियां और बरकत आ जाएगी। इसलिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वाले लोगों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।